Okay. Abhay was the first photo that was shown to me. Okay. First. तो उस रोल के लिए they had asked a couple of actors and उसमें से एक श्रद्धा भी थी, हाँ. आलिया भी थी. Yes. I believe that there are negative and positive energies. Yeah. I believe that when you walk into a place, आप कहीं भी जाओ, नई जगह पे तो डेफिनेटली होता है ये. अभय इतना सिंसियर है कि मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है, अभय ये सिंसियरिटी थोड़ी सी कम रख, इतना भी मेहनत मत कर, इतना भी मत दे कि खुद को भी थोड़ा सा जोन में जा, अपनी लाइफ जी, डोंट जस्ट बिकम बिट्टू 24 आवर्स. तो आया बात वो उनके कुएं के नज़दीक एंड देन उसने कुछ किया ऐसे जो नज़र उतारनी होती है ना, ऐसे कुछ किया और मुझे बोला अभी तू आजा सुबह होने के बाद. एक पॉइंट पे तो उसका इतना पोल खोल दिया था हमने. एक पॉइंट पे फ़ोन करके बोला था सर मेरी फ्लाइट मिस हो गई है. तो बोला अच्छा अगली फ्लाइट ले ले. सर 1-2 घंटे के पहले तो फ्लाइट नहीं मिलने वाली है. मैंने बोला अगली फ्लाइट इमीडिएटली है. बोला नहीं एक्चुअली क्या है सर मैं घर पे हूँ तो मैं निकला ही नहीं. बोला अच्छा ऐसे तू बता. So hi, this is Anna and you're watching me on Moor Fight. आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे शख्स हैं अपनी मूवी के साथ डराते डराते हंसा भी सकते हैं. लेट्स वेलकम आदित्य सर. Hi. How have you been? I have been too many emotions, man. I have been excited. I have not slept. I have been overwhelmed. I have been intrigued. I have been feeling anything and everything you can feel, but all good emotions. It's all been a roller coaster. Yeah. The last 4 weeks now, I would say 4 weeks, surreal would be the right word. So we are living every day, getting so many updates, so much of love, and so much of appreciation on social media through messages. People are watching the film. So yeah, it's amazing. Even I've watched it. I loved it. Thank you so loved much. I'm it. so glad. So I want to share this story with you. I went with my family to watch the film. Okay. And it was my mother's birthday. Oh, एंड यूजुअली हमारे घर पे ऐसे कोई प्लान बनता ही नहीं है मूवीज़ का. हम लोग बोलते हैं चलो नेटफ्लिक्स लगा के घर पे देख लेते हैं. अच्छा. यूजुअली ऐसा ही होता है बिकॉज But so amazing. See, birthday पे फिल्म जाके देखना. हाँ. Because normally birthdays are very special days, right? Yeah. And तभी एक फिल्म को उस स्पेशल दिन का हिस्सा बनाना कि makes us feel so nice कि फिल्मों को भी on your birthday you would want to go and enjoy because Yes. you always remember your birthday. Yeah. So you don't want to see a bad film on your birthday, Of right? course. So, yeah. तो yeah, we don't regret it at all. Exactly. I'm going to tell you that. Amazing. तो ऐसा हुआ कि birthday and my dad was like let's go watch Munja. Yeah. And in my house there's an atmosphere. हम आधे लोग कॉमेडी में वो करते हैं और आधे हॉरर में. I love horror personally and my dad is a horror person. Lovely. And my mother is पूरी पगली Lovely. कॉमेडी मूवीज एंड वो एक मिक्सचर था. तो मेरे डैड ने बोला चलो जाके देखते हैं. Oh man, amazing. But see, when we were doing theatre visits ना, हाँ. we realized कि एक maximum crowd जो theatre में फिल्म देखने आती है, वो families है. या और वो फैमिली डायनेमिक्स में कभी कभी छोटे बच्चों से लेके ग्रैंड पेरेंट्स तक सब लोग आते हैं. कि कुछ फैमिलीज तो ऐसे 16-17 लोगों की आई थी कि भाई कजिन्स उनके कजिन्स उनको. मैं बोला कौन किसका क्या है. तो ये सेड नो वी आर ऑल टुगेदर एंड वी ऑल मेड अ प्लान कि चलो मुंजा देखनी है. ऑफ कोर्स. तो मैंने उनको पूछा भी काफ़ी लोगों को पूछा कि आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा था इस फिल्म का. तो व्हाट यू जस्ट सेड दे सेड कि हमें कुछ लोगों को हॉरर अच्छा पसंद था, कुछ लोगों को कॉमेडी पसंद था. तो हमने बोला चलो प्लान एक साथ बनाते हैं. और ऐसे बहुत उनका कहना था बहुत कम बार ऐसे होता है कि 2 अलग अलग फिल्में हम बहुत बार देखते हैं पर एक साथ मिलके एक फिल्म में दोनों मिल रहे हैं तो वाई नॉट. Exactly. Yeah. It was a mixture of both and it was a perfect blend of horror and Lovely, comedy. lovely. I loved it. I really want to congratulate on the success of it. Thank It you is so much. booming. I'm loving You know, it. it is completely all credit, I would say, to the audience. Because, and in all honesty, I will tell you this, that, you know, we did a campaign with all our heart and our efforts in it. But it was a 2-week campaign. Yeah. And in 2 weeks, there is only a certain ground that you can achieve, right? You can cover till there only. You know, आपको Yeah. आपने फिल्में देखी है तो आपको पता है कि कभी कभी कुछ बड़ी फिल्में होती है जिनका प्रमोशन शुरू होता है फिल्म के अनाउंसमेंट पे ही. जी. और एक 2 साल उसकी कैंपेन चलती है. And eventually pre-release, then it comes in full swing and then it releases. So you look forward, you know. Yeah. There are some films I know of that I'm looking forward to watching for the last 2 years. So you know that there are those films. And Munja is a film that was promoted for 2 weeks. 2 हफ्ते पहले रिलीज के किसी को पता भी नहीं थी कि ये फिल्म आने वाली है. ना हमने एक पोस्ट किया था ना कहीं भी सोशल मीडिया पे डाला था. Yes, I agree. So for me, when a film like this releases, I am hoping that people like it. I am hoping that people really make this film
a success through their word of mouth. And now I'm seeing कितने लोग अब फिल्म अभी भी देख रहे हैं चौथे हफ्ते में. ये प्योरली पॉसिबल है बिकॉज लोगों ने इस फिल्म को उनका बनाया और लोगों ने इस फिल्म को देख के अपना समझा कि इसको जाके प्रमोट करना है और दूसरों को बताना है कि ये फिल्म जाके देखो. एब्सोल्युटली. एक्चुअली वो वैसा हुआ है बिकॉज इट केम ऑल ऑफ द सडन कि अचानक से नो प्रीवियस प्रमोशन बट मुंजा अचानक से एक वो पॉप हुआ है कि आ गया है. लवली. तो एक वो रिएक्शन था. आई वांट टू नो ऐसा आपका वो आपके माइंड में कब आया कि आपको मुंजा बनानी है कि व्हाट वाज द पॉइंट? ये बहुत पहले से चल रहा था. सी आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज ना, आप कभी भी एक स्टोरी के बारे में सोचते हो तो मुझे लगता है बहुत सारे फिल्म मेकर्स ना उनके जहन में उनके बैक ऑफ द माइंड वो स्टोरी चलती रहती है. तो मेरे बचपन से मुझे मुंजा के बारे में पता है, फैसिनेशन है. यानी आप 30-35 साल पीछे जाओ और आप सोचो कि एज अ 7-8 ईयर ओल्ड आई वाज सिटिंग इन दिस स्मॉल माय होम टाउन एंड भूतों की कहानियाँ बता रहे हैं वहाँ पे रात को. एक जो माहौल होता है ना, पूरे से कजिन्स इकट्ठा होकर आंगन में बाहर बैठ के और जंगल है आजू बाजू में आपके, तो वहाँ पे ऐसी भूतों की डरावनी कहानियाँ कि ये किस्सा वो किस्सा. और वहाँ मुंजा के रेफरेंसेस आते थे. पीपल के पेड़ के नज़दीक मत जाना, मुंजा आ जाएगा. ये सारे रेफरेंसेस ना उस उम्र में इतने सुने थे कि वो फैसिनेशन या सबकॉन्शियसली वो दिमाग में फिल्म तब से थी. अभी फिल्में बनानी शुरुआत जब की तभी ऐसा था कि यार इस पे फिल्म बनानी है. कंतारा देखी, फिर मैंने तुम्बाड़ देखी और मुझे और लगा कि अरे ये हमारी फिल्म में क्यों नहीं बना रहा हूँ जो मेरे गांव की फिल्म है. और देन दिस हैपेंड दैट यू नो मैडॉक कॉल्ड मी एंड दे सेड कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिस पे हमने काम किया है, योगेश चांदेकर ने लिखी है फिल्म वो, और आपको डायरेक्ट करनी है क्या. तो मैंने बोला क्या स्क्रिप्ट का स्टोरी है, व्हाट इज़ द टाइटल. दे सेड मुंजा. आई सेड आई एम कमिंग राइट नाउ. मुझे ये फिल्म बनानी है, मुझे कब से बनानी थी. अच्छा आप बता रहे हो ये, मैंने तो ऑलरेडी सोच के रखी थी एक फिल्म मेरे दिमाग में और आई एम कमिंग. तो ये तो इतना अमेजिंग कोइंसिडेंस था. दैट वाज योर मैनिफेस्टेशन. वो दिमाग में था सबकॉन्शियसली. ये मैनिफेस्टेशन हमेशा सबके साथ वर्क होता है कि अगर एक बहुत लंबे समय तक अगर आप एक चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना तो कहीं ना कहीं तो आके वर्क हो जाती है. इट इज एक्चुअली इट इज सरियल. या और ऐसा होता है ना कि हमारी जो इंडियन स्टोरीज हैं, जो गांव की स्टोरीज हैं, उनसे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. जो यूजुअली हॉलीवुड हॉरर फिल्म्स आर एब्सोल्युटली ग्रेट, बट वो होता ना एक हमारा कनेक्ट नहीं बनता उनसे क्योंकि 100%. वो फील ही नहीं है उसमें, हमारा वाला फील नहीं है, देसी वाला फील नहीं 100%. है. तो व्हेन वी सी सच मूवी लाइक मुंजा कि एक यू नो टिपिकल आपका गांव दिखाया जा रहा है, दैट गिविंग दैट इंडियन फीलिंग, देसी फीलिंग की घर वाली चीज़ लग रही है कि जब हम अपने गाँव जाते हैं तो हमारे पास ऐसे दिखता है कि यू नो खेत हैं, जाड़ हैं. तो वो When I was watching the movie वो exactly वैसी फीलिंग आई थी कि ऐसा लग रहा था हाँ ये हमारे साथ भी हो सकता है. यू नो बट इतनी सबसे अमेजिंग चीज़ क्या है, कोंकण को बहुत लोगों ने नहीं देखा है. यू नो जहाँ पे मैंने फिल्म सेटअप की है, मैं दिल्ली में गया था तभी मुझे लोगों ने पूछा ये कहाँ पे है कोंकण, है इतना सुंदर सा गाँव है, कहाँ पे है. तो मैंने बोला देखो क्या है ना, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र. इफ़ यू कम हियर देन यू विल नो हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज. इट इज़ एज एट पार विद केरला. एंड ऐसी सुंदर जगह पे एक हॉरर फिल्म बनाना वो भी एक अलग टास्क था बिकॉज आप फ्रेम लगाओ तो सब बढ़िया ही दिखता है. तो मुझे हमेशा लगता है कि आप जब रूटेड कुछ चीज़ें करते हो ना तभी इंडिया का पूरा रूटेडनेस अगर कल्चरली देखोगे तो बहुत सिमिलर है. सिर्फ जैसे लैंग्वेज है कि उसके डायलेक्ट्स होते हैं, वैसे उस कल्चर के अलग अलग वर्जन्स हैं. जैसे कंतारा में अगर आपने देखा रहेगा तो वहाँ पे जो उधर का वर्जन है वो मुंजा में अगर आपने पहले सीन में देखा है तो वो भी गेटअप करके नाच रहा है एक डीमन. तो वो कल्चर लोकल कोंकण का भी है, उसका सिर्फ एक अलग वर्जन है. तो मुझे हमेशा लगता है हर इंडिया के हर प्रांत में एक ऐसी स्टोरी, एक लोकल फोकलोर, एक लोकल लेजेंड, एक कल्चरली ड्रिवन नैरेटिव तो है ही है. और हम हार्डली टैप कर चुके हैं, नॉट इवन 3-4 स्टेट्स. तो इतना बचा है. तो फोकलोर के बारे में तो मुझे हमेशा लगता है कि एज एन ऑडियंस there's so much to tell and the audience is so intrigued कि आप कुछ भी बनाओ वो आके देखने वाले हैं. ट्रू, आई एग्री विथ योर पॉइंट क्योंकि हमारे अलग अलग गाँव की अलग अलग स्टोरीज हैं. हर जगह के कोई अलग ही क्रीचर्स हैं जो वो बिलीव करते हैं. तो वो एक लाना इज सबको अपना यू नो अपना बचपन याद आ जाएगा कि हमने कजिन्स के साथ बैठ के भूतों की स्टोरी सुनी थी, ये हुआ था वो हुआ था. बट आई वांट टू आस्क यू, आपने कभी फेस किया है, गोस्ट एनकाउंटर हुआ है आपका? घोस्ट एनकाउंटर, सी घोस्ट, आप व्हाट डू यू डिफाइन बाय घोस्ट? लाइक मेरे हिसाब से
I believe that there are negative and positive energies. Yeah. I believe that when you walk into a place, आप कहीं भी जाओ, नई जगह पे तो डेफिनेटली होता है ये कि आप कहीं भी नई जगह पे जाते हो तो वहाँ पे ना मुझे तो होता है, मुझे एक फीलिंग आती है कि यहाँ पे नहीं यार बहुत टाइम नहीं स्पेंड करते या बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ जाते हैं. And that kind of translates my understanding into what is good and what is bad Yeah. in the world around us. I do feel that ghost जो हमने फिल्मों में घोस्ट बनाए हैं, हाँ. ये एक वर्जन है इस नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी Yes. का, जो एंजल्स और डीमंस होते हैं, जो घोस्ट एंड जो गॉड्स होते हैं. तो मुझे हमेशा लगता है कि कोंकण में ना जब भी मैं घूमता था और जो जहाँ कहीं जाता था, मैंने फिल्में वहाँ पे 2 मराठी फिल्में बनाई हैं, तो मैंने कोंकण बहुत देखा है, बहुत Yeah. घूमा हूँ मैं. तो वहाँ की एक अंडरस्टैंडिंग है कोंकण की, एक चीज़ है जो लोकल एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको चकवा बोलते हैं. चकवा. चकवा. आई टेल यू व्हाट चकवा इज. इट्स अ वेरी लोकल थिंग. Okay. आप अगर जा रहे हो कहीं, मुझे पता है कि मैं मेन रोड पे उतरा और मुझे मेरे गांव में चल के जाना है. Okay. और उसका पाथ ये एक सीधा पाथ है. Okay. और मैं चलना शुरू कर देता हूँ. और अगर मुझे 15 मिनट लगने वाले हैं वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए, और अगर मैं 1 घंटा चल रहा हूँ और 1 घंटे के बाद मुझे समझ में आता है मैं वहीं पे हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो उसको चकवा बोलते हैं. यस. और ये बहुत बार कोंकण के बारे में बहुत लोगों के साथ होता है. My God. सो आई हैड, वैसे मैं आई वाज यंग और मैं जा रहा था एक जगह पे और मैं गांव में जा रहा था मेरे, और जहाँ से मैं उतर के चल रहा था वहाँ पे मैंने कम से कम 20 मिनट का रास्ता होगा, मैं 1.5-2 घंटे वहीं घूम रहा था. और मैं कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं लेता, वो सीधा रास्ता था. My God. तो मैं जहाँ से निकला था, जब भी मुझे 1.5-2 घंटे के बाद समझ में आया मैं वहीं पे हूँ, मुझे समझ आ चुका था कि मेरे साथ हुआ क्या है, तो मैं वहाँ से हिला ही नहीं. Goosebumps. मैं वहीं पे बैठा रहा. अंधेरा होने वाला था, मैं बोला अभी अंधेरे में तो इस जंगल में नहीं चलना है. और फिर वहाँ से मैंने उल्टा टर्न मारा, मैं थोड़ा मेन रोड की तरफ आया, और वहाँ पे ना हर ऐसे बस स्टॉप्स, कभी कभी गांव में जाओगे ना तो उसके बाहर दुकानें होती है, तो वहाँ दुकान थी. मैं उधर जो ओनर था वो निकल रहा था, मैं उसको बोला भाई रुक, मेरे साथ ये हुआ है. वो बोला तो मेरे से घर चल. वो मुझे घर लेके गया उसके, और बाहर उसने आंगन के बाहर मुझे बोला तू नहा यहाँ पे, तो अंदर विदाउट हैविंग अ बाथ डोंट कम, बिकॉज दे ऑल बिलीव ये चकवा बिकवा कुछ होता है. Of course. तो ऐड बात वो उनके कुएं के नज़दीक, एंड देन उसने कुछ किया ऐसे जो नज़र उतारनी होती है ना, हाँ. ऐसे कुछ किया, और मुझे बोला अभी तू आजा, सुबह होने के बाद घर जाते. My तो ये God. हुआ था. अभी मुझे पता नहीं, देखो ये एक उसका वर्जन ये भी था कि मे बी मैं गलत टर्न ले रहा था. ये भी हो सकता है कि मे बी मुझे रास्ता गलत दिखा, पर मैं वहाँ से पहले जा चुका था, तो आई डोंट बिलीव दिस. Yeah, But- because you were walking straight, right? बट आई डू बिलीव, एंड आई एम नॉट द ओनली वन. ये इतना रेगुलर होता है वहाँ पे कोंकण में, जिसको चकवा बोलते हैं. Oh my God. इस सब्जेक्ट पे ना एक फिल्म बनी थी केरला में, Kerala. चुरुली नाम की, चुरुली. और ये सेम स्टोरी थी, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट उसका ये लॉजिक वर्जन यही था. हाँ. तो मैं इतना फैसिनेट हो गया, बोला ये उधर भी है सेम थिंग. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इट्स नॉट ओनली कोंकण थिंग, बट वही है ना, कोस्टल गाँवों में कल्चर कितना फैल जाता है. Exactly. वो एक बट काफ़ी चीज़ें रिलेट कर जाते हैं. हाँ, डेफिनेटली. यस. Coming to the movie, I heard the casting took a lot of time, you know, because you were Yeah. selecting Yeah. people and auditioning a lot of Yeah. people. What was the point when you felt कि, you know, Abhay and Sharvari are the one? See, I always believe that when I'm casting, the minute you see them, हाँ. you need to feel that you would want to watch them. You do see a spark that these are your characters, and then after auditioning, then that is cemented. वो ऐसे पक्का हो जाता है फिर. हाँ. तो मैंने बहुत ऑडिशंस किए, और इस सब के बाद एक पॉइंट पे मैं आपके पहुंच चुका था कि यू नॉट बिलीव दिस. Okay. अभय वाज द फर्स्ट फोटो दैट वाज शोन टू मी. Okay. फर्स्ट, ही वाज नॉट द फर्स्ट ऑडिशन आई हैड सीन, बट मेरा कास्टिंग डायरेक्टर है अनमोल, और मैंने उनको फर्स्ट मीटिंग हुई थी मेरी अनमोल के साथ, अंधेरी वेस्ट में मीटिंग हुई थी. वहाँ मैंने उनको दिखाया था और बोला था कि देखो ये कैरेक्टर है, स्केच, नॉट द फेस स्केच, बट व्हाट कैरेक्टर स्केच क्या जो होता है, डिस्क्रिप्शन. Yeah. डिस्क्रिप्शन. Description. तो ये डिस्क्रिप्शन है, और आपको ये डिस्क्रिप्शन वाला एक्टर मुझे ढूंढ के देना है. तो उन्होंने बोला 1 मिनट रुको, तो उन्होंने एक फ़ोटो निकाला अभय का और मुझे दिखाया. Okay. ये कैसे लगता है आपको? मैं बोला ये बहुत सही है रे, बट इसको ऑडिशन करवाते हैं. तो टी-शर्ट में उसको ऑडिशन करवाता हूँ. ओके, ऑडिशन करवा. और उसके बाद हमने ऑडिशन शुरू किए, और अभय का ऑडिशन आई थिंक वो नहीं था यहाँ पे, वो बहुत लेट आया. हाँ. उसका ऑडिशन बहुत बाद में हुआ.
और उसका ऑडिशन जब तक आया तब तक मैं उसको भूल चुका था। एंड तभी मुझे अनमोल ने बताया कि अरे वो वही लड़का है जो तुझे इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ. और देन आई सॉ हिज ऑडिशन, आई सेड ये वही लड़का है जिसके साथ मुझे काम करना है। तो आई समटाइम्स इट इज क्रेजी हाउ थिंग्स फाइंड यू एंड यू फाइंड थिंग्स, बट आई थिंक इट वाज हिज डेस्टिनी एंड इट वाज मेंट टू हैपन। Of course, because I heard, I think there was a female person who was going to so yeah, ये do a दूसरी स्टोरी है। character. ये तो हाँ. पहली वाली स्टोरी है उसकी कि योगेश चांदेकर जो मेरा राइटर है, हाँ. उसने ये फिल्म लिखी थी विद अ फीमेल पर्सपेक्टिव। Okay. एंड उसकी जो प्रोटैगनिस्ट थी वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, जो बिट्टू थी जो लड़की थी। हाँ. और उसकी जो स्टोरी थी उसमें ऐसा था कि बिट्टू यानी लड़की शी इज इन लव विथ हर बेस्ट गर्लफ्रेंड। Okay. So she is a lesbian and nobody understands her and only Rajji understands her and she tells her Rajji that I am in love with my best friend और कोई समझेगा ही नहीं ये चीज़ को। And then Munja comes into the picture and how she defends her best friend. Yeah. तो उस रोल के लिए they had asked a couple of actors and उसमें से एक श्रद्धा भी थी, आलिया भी थी। Yes. श्रद्धा नियरली डन थी, श्रद्धा का लुक टेस्ट भी हुआ था and everything was kind of working in a direction where अच्छा ये तो यही फिल्म बनने वाली है। And then I came on board. When I came on board ना मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि any story that you are trying to tell उसका कोर हार्ट और कोर नैरेटिव जो है ना वो एक ही होना चाहिए, नॉट मल्टीपल्स, क्योंकि लोगों को ना इतनी सारी चीज़ें समझती नहीं है। हाँ. वो एक फोकस रख के फिल्म देखने आते हैं और उनको वही चाहिए। तो मुझे लगा ये नैरेटिव ना मेरे लिए ये इस फिल्म के लिए वर्क नहीं हो रहा था। मुझे लगा क्या था ना कि देखो एक मुंजा है, हाँ. जो भी एक लड़का है जो पगलेट लड़का है, गधा है, 20-10 साल का है, पर जिसको अक्ल ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। और वो एक ऐसी लड़की के प्यार में जो उससे 6 साल बड़ी है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी वो इतना क्रूर बन चुका है ना कि वो मारने के लिए भी तैयार है अपनी बहन को। करेक्ट। हाँ. और एक ऐसा लड़का दूसरा है जो बिट्टू है, जो बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से प्यार करता है, जिसको प्यार समझ में आता है, पर वो ऐसी लड़की से जो भी उससे बड़ी है। बट हिज वे ऑफ लुकिंग एट लव इज टू डिफेंड इट एंड टू गिव अप हिज लाइफ फॉर इट, एंड दिस फेलोज वे ऑफ लुकिंग एट लव इज टू टेक लाइफ फॉर इट। तो मुझे वो बहुत सही लग रहा था, बैठ रहा था मेरी समझ में, और मुझे लगा वो वही स्टोरी होनी चाहिए। देन आई सजेस्टेड कि कैन वी डू दिस, एंड द प्रोड्यूसर सेड लेट्स डू इट, एंड देन वो पूरा पर्सपेक्टिव और पूरा गेम ही चेंज हो गया उसके बाद। एक्चुअली आई मीन वो जो फिर एंड एक स्टोरी का आपने किया जहाँ पे बिट्टू बोलता है कि आई डोंट नो इफ यू लव मी बैक और जो कंसेंट की बात है। हाँ. जो कंसेंट की बात है, देखो लड़की के या इन अ sexual relationship which had two females in love with each other, with one girl in love with the other girl, that consent would have not been the only thing. We would have been making a statement on a lot more things. यहाँ पे ना इतने डायरेक्ट कंसेंट की बात हो गई कि एक मुंजा है जो कंसेंट में बिलीव ही नहीं करता। हाँ. जिसको चाहिए तो उसको बेला से या मुन्नी से शादी करनी है। हाँ. जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और एक लड़का है जो प्यार करने के बाद, इतना सब करने के बाद भी लड़की को बोल रहा है, एंड शी सेड आई एम नॉट श्योर, एंड ही सेज कि इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी दैट मुंजा सिटिंग ऑन योर हेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी मेरे लिए, और मैंने कहा कि इस पे कमेंट हमें फिल्म में करनी है तो सिंपल और सीधे रख के करते हैं। एक्चुअली पूरा गेम ही चेंज हो गया, उसमें एक लेसन भी आ गया साथ ही साथ कि तुम्हारे सर पे बैठा मुंजिया नहीं बनना मुझे। करेक्ट। नहीं, इवन बिट्टू बोलता भी है ना, जब वो मार रहा है अपने चाचा को यानी मुंजा को, तभी वो बोलता भी है उसको कि तूने कभी अज्जी से पूछा, मुन्नी से पूछा उसे क्या चाहिए, तो वो वही बात थी बेसिकली कि तूने कैसे तय कर लिया कि तुझे शादी करनी है और उसे भी करनी है, तूने तो कभी पूछा ही नहीं उसको। That was a lovely message, क्योंकि चलो हमने ये देख लिया कि हॉरर और कॉमेडी थी, बट इट हैज़ अ वेरी इमोशनल टच टू द फिल्म एज वेल। इट वाज वेरी स्पेशल टू सी। आजी प्लेड अ वेरी important role, very crucial, कि जिनसे ना एक कनेक्ट बन गया कि हमारी आजी होती है जो शी इज परफेक्ट एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ अस, तो वो एक पर्सनल कनेक्ट भी बन गया उसके साथ, और एक वो इमोशनल कनेक्ट भी हो गया उस मूवी से। क्यों हुआ पता है? वो मेरी अज्जी है, क्योंकि नहीं मेरी अज्जी नहीं, वो कैरेक्टर मेरी अज्जी है। Like my relationship with my Ajji was like this, and she is no more. But बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हम शेयर करते थे, और मुझे अभी भी याद है when she passed away, उन्होंने बनाई हुई जो चीज़ें थी जो मुझे पसंद थी, वो फ्रिज में थी, जो मुझे मिली थी कुछ दिनों के बाद। तो वो जो पुरनपोली का रेफरेंस है वो उससे तो बहुत ही मुझे ऐसे लगा कि यार ये इतना रिलेट होगा लोगों को, क्योंकि वो इमोशन रिलेट होता है जो आपके साथ घटता है ना कभी कभी, वो जब आप फिल्म में आप इन द राइट सेंस रखते हो ना, तब वो लोगों तक पहुंचता है। तो आई थिंक वो पीपल लाइक इट। दे डू, क्योंकि वहाँ पे जैसे व्हेन शी पास्ड अवे, द आजी पास्ड अवे, उसके बाद एक सीन आया था जहाँ पे अभय बिट्टू इज
डाइनिंग टेबल पे बैठा है ना। हाँ, और उसको नहीं, डाइनिंग टेबल वाला नहीं, वो बीच पे है रात को, एंड ही सीज द आजी एंड शी इज हैप्पी बिकॉज अब वो एक बिट्टू बन चुका है, ही स्ट्रॉन्ग एंड शी स्टैंडिंग है, शी स्माइलिंग एट हिम। तो आई फील दैट इज ट्रू, इट हैपेंस, क्योंकि एक जो आपका एल्डर होता है व्हेन शी passes away, एक वो फीलिंग आती है आपको। I see my Ajji, like I don't see her, but I know she's there. Exactly. Even my well grandma is no more, but I have this feeling she's always around. Always. So that was a very main scene कि you know it has a feeling in it. वो है, ऐसा होता है क्योंकि। Lovely. तो lovely. I loved it. Goosebumps आ रहे हैं मुझे अभी भी उसके बारे में बात करते हुए। Coming to the songs of the movie. इतने प्यारे गाने, आय हाय, इतने प्यारे। आपके दिमाग में जब आप while you were in the process, ऐसा फिक्स था कि आपको अरिजीत सिंह से एक गाना गवाना ही है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर गानों की बात करोगे तो मैं इसका क्रेडिट 2-3 लोगों को तो बहुत ज़्यादा देता हूँ। एक तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द क्रेडिट हैज़ टू गो टू दिनेश विजन, बिकॉज उनकी गानों की समझ इतनी अमेजिंग है कि उनको एग्जैक्टली पता था कि इस फिल्म की क्या रिक्वायरमेंट है और म्यूज़िक इस फिल्म में क्या वर्क होगा। सेकेंडली मैं सचिन जिगर को क्रेडिट दूंगा बिकॉज दे आर फिनोमिनल टैलेंट, एंड फॉर मी इट वाज ऑलवेज दैट व्हेन आई हैड सीन स्त्री, व्हेन आई हैड सीन द वे वर्क दे हैड डन भेड़िया, आई रियलाइज कि ये जॉनर क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है हॉरर कॉमेडी का। उसमें म्यूजिक करना बहुत डिफिकल्ट है और उसमें म्यूजिक जो चले वो करना तो और डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारी हॉरर कॉमेडीज बनी है जिनका म्यूजिक नहीं चला है। तो इसमें म्यूजिक करके चलाना बहुत डिफिकल्ट है और ये इन दोनों ने बहुत अमेजिंगली क्रैक किया है। और तीसरा नाम है अमिताभ भट्टाचार्य, बिकॉज जो जब लिखते हैं ना वो तो गाने जो सिचुएशन पे बनाते हैं ना वो इतने आउटस्टैंडिंगली वर्क होते हैं और इतने पोएटिक भी रहते हैं। तो ये जब ये गाने बन रहे थे तभी मुझे लगता है कि ये अरिजीत को लाना वॉज अ कॉल टेकन, आई एम श्योर, बाय द प्रोड्यूसर दिनेश विजन एंड द म्यूजिक डायरेक्टर्स। क्योंकि बहुत बार ये जो सिंगर कौन होगा ना, मैंने जब भी फिल्में बनाई ना मैं कभी ये कॉल खुद नहीं लेता, इट इज द म्यूजिक डायरेक्टर्स कॉल कि उनको उस गाने के लिए कौन सही लगता है। और बिकॉज अरिजीत का एक गाना इधर ऑलरेडी चल चुका था, अपना बना ले, जो भेड़िया का गाना था, और इट वाज अ सुपर डुपर हिट। तो एक एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि अगला हॉरर कॉमेडी जो फिल्म बनेगी उसमें अगर रोमांटिक गाना होगा तो उसमें भी अरिजीत का होना चाहिए। वो डिमांड थी शायद लोगों की, और वो डिमांड सुन के ये कॉल लिया गया था। It is a beautiful song. तेनू खबर नहीं। It is a very वो beautiful कंसर्न की बात करता है ना, तेनू खबर नहीं। It is about the same thing ना। वही it is meaningful. It is totally relating to the movie. और वो गाना ऐसा ना लोगों के दिमाग में बस गया है। मेरे दिमाग में ऐसे कुछ काम करी और चलता रहता। Very sweet melody, lovely melody. मैंने पहली बार सुना था तो मुझे इतना पसंद आया था, मैंने बोला ये I am so glad कि ये मेरी फिल्म का गाना है। और तभी एक दूसरे आवाज़ में था, जब then I found out कि अरिजीत गाएगा तो मैं बोला ये this can't be better. Of course, we loved it. Let's play a quick segment. I want to know behind the scenes. Sets, आपके मुंजा के sets पे क्या-क्या हो रहा था? I want to know everything. One memory you will always take with you from the sets of Munja. So one memory I'll always take with me is we were shooting the scene with Ajji. Okay. जहाँ पे अज्जी को आके on day 1 she had to deliver. और ना मैं थोड़ा worried था कि जो सुहास जोशी है जिनको हमने कास्ट किया है कि वो अज्जी का गेटअप पहन के जब भी कब कैसे दिखेगी, कैसे आएगी, बिकॉज मैंने कहा था ना अभी वो मेरी बहुत पर्सनल स्पेस में आ रहा था कैरेक्टर कि वो मेरी अज्जी को दिख रहा था और मुझे वही चाहिए थी, लाइक जैसे वो थी जैसे बात करती थी वो वैसी ही अज्जी हो। एंड व्हेन शी केम इन दैट लुक एंड व्हेन शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड व्हेन शी डिलीवर्ड हर फर्स्ट लाइन्स, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे लगा कि यार मैं मेरी अज्जी को दिख रहा। सो दैट वाज सच एन अमेजिंग टेक अवे फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन सेट जब भी आप वो देखते हो होते हुए। सो ये मैं भूल नहीं पाऊंगा। और शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आपको एक एक्टर दिखता है और वो जस्टिस करके उसके बियॉन्ड लेके जाते हैं। तो शी इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स हु हैज डन इट। सो ये बहुत अमेजिंग मेमोरी थी। तो या आई विल नेवर फॉरगेट दिस। इट इज़ वो एक स्पेशल मोमेंट बन जाता है और एक कैरेक्टर को देख के ऐसा लगता है ना अपनी वाली फीलिंग आती है। वो उनसे आई थी 100%। वो मुझे सेट पे पहले शॉट देखने के बाद आई थी और मुझे तभी लगा था कि अगर ये इतना मुझे इमोशनली वर्क हो रहा है ये वर्क होगा और आई एम सो ग्लैड ये वर्क हो रहा है। इट इज वन सॉन्ग दैट यू वर लिसनिंग ऑन लूप while in the shooting process of Munja.
आई डोंट लिसन टू वन सॉन्ग, आई लिसन टू एन एल्बम. ओके. तो मैं नॉर्मली हर फिल्म के शूट के पहले या हर फिल्म के शूट के वक्त रहमान के गाने कोई भी ले लो आप, मैं वो लगाता हूँ. There's one more music director that I've kind of really followed and I'm a massive big fan of. He does work in Malayalam cinema. सुशीन श्याम नाम का एक बहुत अमेजिंगली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है जिनके मैं गाने बहुत रेगुलरली सुनता हूँ. और इनफैक्ट मुंजा के वक्त रहमान और सुशीन श्याम के लूप पे मेरे फ़ोन पे स्पॉटिफाई पे गाने चल रहे थे. तो दीज टू आर आई थिंक फिनोमिनल टैलेंट. रहमान तो एवरीबडी नोज, बट सुशीन श्याम इज़ वन टैलेंट टू वॉच आउट फॉर. जिन्होंने नई गाने सुने उनको तो 100% सुनना ही चाहिए. ऑफ कोर्स. और गाने ऐसा होता है ना, आपको वो ज़ोन में रखते हैं. Yes. So when you are in that one zone ना, Yes. even I feel like I should repeat the songs I'm listening to because वो मैं उसी zone में रहूंगी. Totally. It will I help me completely कि believe. I will be. You know, a lot in of that. actors do this. Yeah. बहुत सारे एक्टर्स करते हैं क्योंकि इमोशन को टैप करने के लिए उस कैटेगरी का म्यूजिक सुनते हैं. Of course. Yes. That is very important. Who was the funniest on the set? तरन जो स्पीलबर्ग सिंह बनाए, he is hilarious. Actually मैं बताता हूँ, अगर फिल्म में आपको फनी लगा है हाँ. तो वो वैसे ही है. एज एन इंडिविजुअल वो वैसे ही है. उसमें और फिल्म के वर्जन में कुछ अलग नहीं है. तरन सेट पे भी जो आके करता था, सेट पे जैसे था, जो एंजॉय किया हमने शूटिंग, और उसने भी आई थिंक ही वाज द मोस्ट फनी. सो वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हैविंग हिम ऑन सेट और बहुत मज़े करते थे हम. उसके बाद आई थिंक हु इज वेरी फनी इज द वे अभय एंड शर्वरी गॉट अलोंग. Okay. दे गॉट अलोंग सो वेल कि उनकी एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे, एक दूसरे बहुत मस्ती करते थे. दे वर लाइक दिस टू कॉलेज और स्कूल किड्स हु हैड टू ऑलवेज बी लाइक कि सुनो अभी शांत रहो, अभी काम करना है हमें. तो उन्होंने इतनी मस्ती और मजाक किया और वो मेरे लिए ना इन अ वे भी बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे वो व्हाट यू कॉल इट, द ट्यूनिंग जो होती है दोनों को, जो कैमराडरी होती है, वो इतनी ज़रूरी होती है, फिल्म में दिखती है ऑन स्क्रीन. तो व्हेन इट वाज हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द शूट, आई वाज वेरी हैप्पी कि माय होल टीम ऑफ दिस ग्रुप इज कमिंग टुगेदर वेल. और बहुत मजे किए इन्होंने. एक्चुअली वो एक बॉन्ड बन जाता है तो वो शूट करने में भी इजी हो जाता है. 100%. या तो इट्स लवली. ऑल्सो सेट पे लेट कौन आता था? तरन. सेम. क्या होता है जब भी आप बहुत मज़े करते हो और लोगों को भी आप पसंद हो, तभी आप उसके गैर फायदे भी लेते हो. जैसे तरन सर आता हूँ करके. तरन लेट सेट पे ऐसे नहीं आता था. तरन सेट पे जल्दी आता था. तरन आता था दिल्ली चंडीगढ़ से. अच्छा. तो वो बॉम्बे ही लेट पहुंचता था. Okay. तो जब तक वो सेट पे ना आए कुछ खैर नहीं होती थी कि ये पहुंच भी गया है कि नहीं आए. और फ्लाइट मिस करने में वो माहिर है. फ्लाइट ना पकड़ने में, फ्लाइट बुकिंग ही ना करने में, भूल जाने में वो माहिर है. तो मुझे हमेशा होता था, टेंशन हुआ करती थी कि मैं मेरे प्रोडक्शन को पूछता था कि कल सुबह शूट है, वो निकला कि नहीं निकला, क्योंकि बहुत पॉसिबल चांसेस है कि वो निकला ही नहीं है. और दे टू टेल मी कि नहीं वो निकल चुका है. देन हैज टू बी लाइक ओ चलो वो आने वाला है सेट पे. एक बार सेट पे आ गए ना सब लोग, कि वो सब nobody, there was not a single actor who was not on time. They were prompt on time. Never ever have I had a problem with them. पर ये मुंबई आने का जो पूरा टेंशन हमें तरन देता था, वो उसका बहुत है यार. उसकी पर्सनालिटी से पता चलता है. हाँ यार वैसे ही था वो. एक पॉइंट पे तो उसका इतना पोल खोल दिया था हमने. एक पॉइंट पे फ़ोन करके बोला था सर मेरी फ्लाइट मिस हो गई है. तो बोला अच्छा अगली फ्लाइट ले ले. सर 1-2 घंटे के पहले तो फ्लाइट नहीं मिलने वाली है. मैंने बोला अगली फ्लाइट इमीडिएटली है. बोला नहीं एक्चुअली क्या है सर मैं घर पे हूँ तो मैं निकला ही नहीं हूँ. बोला अच्छा ऐसे तू बता रहा है कि जैसे तू एयरपोर्ट पहुँच के फ्लाइट मिस की है. तो सब कुछ हो चुका है. वो होता है ना बैक बेंचर बंदा है वो बैक बेंचर को आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है क्लास के 12 वाला. तो वैसे है वो. हाँ. गॉड. और अभय कंप्लीटली डिफरेंट. अभय इतना सिंसियर है कि मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है अभय ये सिंसियरिटी थोड़ी सी कम रख, इतना भी मेहनत मत कर, इतना भी मत दे कि खुद को भी थोड़ा सा जोन में जा, अपनी लाइफ जी, डोंट जस्ट बिकम बिट्टू 24 आवर्स. तो ये एक्सट्रीमली सिंसियर, फर्स्ट बेंच वाला, हमेशा पढ़ाई जिस दिन किताबें हाथ में आई तभी पढ़ाई शुरू करने वाला वो बंदा है. इसलिए वो रोल अच्छे से प्ले कर पाया बिट्टू का, क्योंकि वो है बिट्टू. नो बट एक्चुअली अभय की बात कमेंडेबल बात है कि फिल्म जब भी शूट खत्म हुआ था उसके बाद 1 साल लगा मुझे फिल्म रिलीज करने में. और अभय को हमने एज अ प्रोडक्शन हाउस बोला था कि तू 1 साल में कुछ काम क्यों मत कर, बिकॉज हमें तो लॉन्च करना है. हाँ. सो इट विल बी अ बिग लॉन्च फिल्म फॉर यू. तो कोई भी फिल्म कर लेगा उसके पहले आ जाएगी ना, तो यू विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी.
1 साल वो लड़का घर पे बैठा है, वेट कर रहा था रोज़ कि ये फिल्म आने वाली है। तो मैं उसको बहुत क्रेडिट दूंगा इस चीज़ के लिए कि एज एन एक्टर आप यंग हो और आप घर पे बैठ के सिर्फ नहीं बोल रहे हो काम के लिए और आप 1 साल कुछ करते नहीं हो ना, तो इट नीड्स अ फोरसाइट, गट्स एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। A lot of patience and trust. Yes. He had full इस 1 trust साल in में you, तरण yeah. ने 200 रील्स बना लिए, इस 1 साल में उसने 4-5 कैंपेन्स कर ली, उसने सब कुछ कर लिया। तो मैंने उसको उस पे होप्स गिव अप कर लिए थे कि Taran was already content creation and stuff. But yeah, Abhay was a boom. Like girls are going crazy over him. No, I'm so glad because one of my reasons of selecting Abhay also was कि I knew that I wanted a charming boy. You know who you feel for. Yeah. कि यार मुंजा के अगेंस्ट उसको खड़ा कर रहा हो ना तो आपको लगे कि ये जीतना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि वो रोमांस में हीरो है, ऐसा भी नहीं कि वो एक्शन कर रहा है, उसको एक्चुअली सबसे बड़ा अंडरडॉग है। वो इतना डरा और सहमा सा भाग रहा है, तो उसमें देयर इज नॉट अ सिंगल हीरोइक क्वालिटी इन दैट कैरेक्टर दैट ही हैड टू डू, बट स्टिल यू नीड टू फील फॉर हिम। तो वो अभय में क्वालिटी है। और आई थिंक ऑल दीज गर्ल्स ना हु आर लाइकिंग हिम बिकॉज ऑफ दिस सेंसिटिव सा, इनोसेंट सा, प्यारा सा बच्चा। बच्चा नहीं, वो लड़का। बच्चा तो मैं उसको देखता हूँ बच्चा ही मेरे लिए, बट लड़कियों को तो वो लड़का दिख रहा है। और बहुत सारी व्हाट वाज वेरी फैसिनेटिंग, आई टोल्ड हिम दिस आल्सो कि 12, 13, 14, 15 साल की जो एज की लड़कियां है ना, उनमें तो बहुत बड़ा रेंज है वो, क्योंकि ये सारी लड़कियां इतना के ड्रामा देखती है ना। मैं बोला तू ना वो के ड्रामा वाला लड़का दिखता है कि जो से फेयर सा, पतला सा, घुंघरालू बाल वाला ना, तो एकदम उनके वो दुनिया में बैठ जाता है। सही उसकी एक्टिंग भी वैसी थी, प्यारी सी, वो जो कोरियन एक्टर्स करते, तो या ही फिट्स इन वेल। ओके, वन सीन फ्रॉम द फिल्म which took a lot of retakes but it came out very beautifully. One scene from the film which we were all worried about, more than me, the actors were worried about कि हमसे नहीं हो पाया ढंग से, और बहुत सारे रीटेक्स हुए मेरे। और सीन खत्म होने के बाद मैं उनको बोला कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, तो अब तुम फोकस ही नहीं दे रहे हो। बोला नहीं सर सॉरी। और फिर मैंने नेक्स्ट डे वापस शूट किया उसको, और फिर वो बहुत टेंशन में थे एक्टर्स कि ये इस टाइम तो हमने किया है क्या ढंग से। एंड आई सेड नहीं चलो मुझे कुछ तो मिल गया, मैं एडिट में पोस्ट में ना इसको बना लूंगा। दिस वाज द लास्ट सीन ऑफ द फिल्म। जब ये अभय मिलने आता है शर्वरी को, बिट्टू आता है और वो पैकिंग करके जा रही है, और वो उसको बोलता है कि आई लव यू, वो वाला सीन। और इतना टेंशन था उन दोनों को कि सर ये फिल्म तो खत्म हो रही है इस सीन पे, और हमने तो बहुत बुरी तरह से सीन परफॉर्म किया है, हमें तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको टेंशन इतना आ गया था। मैंने उनको टेंशन दिया भी था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ध्यान कैसे तुम लोग, बहुत डांट दिया था मैंने। बट व्हेन दे सॉ द फिल्म एंड व्हेन आई वाज एडिटिंग द सीन ओनली, आई नो कि आई हैड गॉट इट। बट व्हेन दे सॉ द फिल्म देन उसके बाद उन्होंने बोला सर बुरा नहीं था सीन, अच्छा कहने वाला सही था। बट तभी मैंने इट वाज इंपॉर्टेंट कि आई पुश्ड यू बिकॉज फोकस समथिंग हैड हैपेंड। कुछ कभी कुछ दिन निकल जाते हैं ना ऐसे कि आपको सुर नहीं मिलता है, तो उस दिन वो सुर नहीं मिल रहा था उनको, और रीटेक रीशूट में तो मिल गया। तो आई एम that is we are glad. It's a beautiful scene. उससे एंड हुआ है और वो काफी दिल पे लग के एंड हुआ है। वो तो ना वन साइडेड लव वाला हुआ है। वो सब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हाँ होते हैं जिंदगी में वन साइडेड लव। फ्रेंड जोन किया हुआ लड़का है वो। बहुत बात मुझे बोला सर मुझे आप एक ऐसे कैरेक्टर दे रहे हो जो इवेंचुअली इतना सब करने के बाद भी वो फ्रेंड जोन ही हो जाता है। बोला नहीं भाई तू फ्रेंड जोन नहीं हुआ है, तूने बहुत ऐसे लड़कों को होप दी है कि हमारा भी कुछ लाइफ में हो सकता है। तो अभय वो लड़का है। और आपने सीक्वल का दे ही दिया है तो एग्जैक्टली, तो उसमें बहुत चीजें होनी बाकी है ना, अभी बाकी है, तो होप नहीं छोड़ी है किसी ने भी। यस। ओके, वन लास्ट थिंग, वन थिंग फ्रॉम द मूवी यू फेल्ट कुड हैव डन डिफरेंटली। More than differently, one thing from the movie I think I can do better is the fact that in the film I had when we written it ना, हमने शुरुआत से मैं बोलूँगा ये, हमने ना फ्लैशबैक जो है मुंजा का, जो गोट्या जो बच्चे हैं दोनों, फर्स्ट 10 minutes ऑफ द फिल्म, ये उतना ही लिखा था। और मुझे बहुत मेरा मन कर रहा था ऐसे दैट मैं थोड़ा और लिखूँ उसको, मैं थोड़ा और लंबा करूँ सीक्वेंस को। वो जो दुनिया थी ना कोंकण की 1950s की, वो मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगी ना कि मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक अलग ही चैप्टर है उस फिल्म का। और अगर मुझे अभी आप बोलो ना तो मैं थोड़ा उसको और वो स्टोरी और बताऊंगा, मुंजा की बैक स्टोरी, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि वो जो बच्चे हैं, और क्या अमेजिंग बच्चे हैं दोनों। मुझे बहुत ही खुशी इस बात की कि मेरे हाथ में ऐसे दो टैलेंटेड बच्चे मिले जिनको समझ आई उस कैरेक्टर की,
वो जो गोटिया बना है आयुष, हाँ. जो इतना डरावना लगता है, ऐसा बच्चे के हिसाब से आपको डरावना लगना इज नॉट इजी, पर उनके साथ में कुछ थोड़ी सी और नैरेटिव उनकी बिल्ड करता, मुंजा वो कैसे बना, हाँ. उसमें मुन्नी का प्यार जो था उसका क्या था, वो थोड़ा सा और बिल्ड करता तो और मज़ा आता. हाँ. बट आई नो रिग्रेट्स, आई थिंक जो है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है. बट एक होता है ना डायरेक्टर का कभी कभी कि उसको कुछ चीज़ें अपनी फिल्म की थोड़ी बेटर लगती है दूसरी चीज़ों से, और लगता है कि थोड़ा मैं इसको और करूँ तो और मज़ा आएगा. ये वो चीज़ वो कभी नहीं जाता, वो होता ही है. वो मैं 20 साल के बाद भी फिल्म देखूंगा मुझे यही लगेगा. हाँ, क्या ये कर लेता. 100%. So I want to know about your future projects. What is coming next? So right now, in the immediate future, there's a film that's releasing. Yes. That's called Kakuda. Yeah. That's releasing on 12th of July on Z5. It's again a different kind of horror comedy. It is not like this. Yeah. It is a little spoofy. It is a little more funnier. It is crazier in terms of its take on horror comedies is very different. Yeah. तो ये फिल्म मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके आपके सामने आने के लिए. और रितेश है जिनका कॉमिक टाइमिंग बहुत सॉलिड होता है हमेशा. सोनाक्षी बहुत अच्छे एक्टर है. हाँ. साकिब बहुत अच्छा काम किया उसने. तो ऐसे कुछ लोग हैं. आसिफ भी है जिसमें जो अभी पंचायत और इसके थ्रू OTT पे बहुत अच्छे चल रहे हैं. तो एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है एक्टर्स का जो एक साथ आके फिल्म, जिन्होंने एक हॉरर कॉमेडी बनाई है मेरे लिए. और उसके बाद एक फिल्म है जो ऑन फ्लोर जाएगी, जो अक्टूबर में जाएगी, जो मैडॉक की यूनिवर्स ऑफ हॉरर कॉमेडीज की एक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है. जो एक देसी हमारा वर्जन ऑफ वैम्पायर्स की फिल्म है. Wow. So yeah, we are all excited for it and we are lovely, waiting for it. lovely. It was lovely having a conversation with you. Thank you so much. My pleasure.